If you do not have embroidery ring, for example, then you can use a pad, your writing pad or board or cutting board, and you can secure your cloth at one end so that it will not move. You can use clips at one end so that it will not move all the time. And एक end आपको पीछे से thread use करने के लिए open रखना पड़ेगा. Okay, so you can use any type of cloth available to you. Cotton is best suited. It looks very pretty on cream cotton color. Then you can use any rough blouse piece or anything if you have at home. So I'm using the same. This is pink color so that I can see whatever I'm doing very clearly. So I hope everybody knows how to use the embroidery ring. It's wooden. You get it in plastic also. Get it in cane also. Whatever is your preference, you can opt for it. Stretch the cloth as tight as possible so that if you have wrinkles or crumples, then you will not be able to do the stitches properly. And we need to fix this. And then you can again stretch it from all sides a little bit. So this is how you prep up the cloth. Fine. Now, first we are going to learn is running stitch, which is not a type of embroidery stitch as such, but it was more used as a conventional stitching method earlier when everything was done by hand. Nowadays we have machine embroidery also. We have machines ready for all kind of designs. So if one is pro in machines, it's a different thing altogether. Only the thing is, handmade is always on a scale, you will see it is slightly better always. You'll get the very satisfactory response with it. So you can use that. You can use any kind of colors. I'm using this Dolly stranded cotton thread. Okay, this is 3 rupees for this bundle. You get it in lot of different colors, and there are so many other brands. The popular Anchor is another popular brand in this category. So it has various strands in this one, you can see. 6 स्टैंड्स होते हैं जनरली. अभी ये छोटा है तो आप 8 स्टैंड्स का ला सकते हो. लिखा होता है उस पे कितने हैं, जैसे टिश्यूज में प्लाई होता है उसी तरह. तो अगर आप ये 3-3 डिवाइड करना चाहते हैं वो ले सकते हो. अगर आप थोड़ा सा पतला वाला बारीक काम करना है तो आप 2 स्ट्रैंड्स ले सकते हो. अभी के लिए मैं 2 ले रही हूँ बिकॉज मेरी सुई बारीक वाली है. आपको खास करके एम्ब्रॉयडरी की नीडल भी मिलती है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा शार्प और छोटी सी होती है हाइट में, तो वो भी आप ला सकते हो. या फिर आप रेगुलर आपकी जो है नीडल वो यूज कर सकते हो. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट. एम्ब्रॉयडरी नीडल का क्या होता है, अगर आप क्रॉस स्टिच जैसे कर रहे हो, एक कपड़ा आपको क्रॉस स्टिच का अलग रहता है, उसके लिए जो नीडल रहती है उसमें नोकीला एंड नहीं होता है. देयर इज नो पॉइंटेड एंड एट द क्रॉस स्टिच नीडल. सो वो एम्ब्रॉयडरी नीडल अलग से मिलती है. एंड दैट इज ऑल्सो निटिंग का नीडल या फिर
आपके जो वुलन आपने जो पार्ट्स बनाए हैं वो सीने के लिए अलग स्टाइल की नीडल मिलती है, तो वो भी कुछ लोग क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज करते हैं। So this is two strands that I have taken. If you want to mix two colors, you can add one more strand of another color. Like येलो के साथ आप ये लेमन येलो है, इसके साथ आप चाहे तो ग्रीन ले सकते हो. So you will automatically get different kinds of color shades as you use the stitches. So first we will see रनिंग स्टिच. एक्चुअली रनिंग स्टिच के लिए ये एम्ब्रॉयडरी का रिंग का जरूरत नहीं है वैसे तो, पर अभी बनाया है इसलिए दिखा देती हूँ मैं. अभी आप एक तरफ से ये गांठ नहीं बांधना चाहते हो तो यू कैन कीप दिस ओपन ऑल्सो. दो स्ट्रैंड्स मैंने ऐसे दोनों तरफ दोनों पैक कर लिए हैं. नाउ फॉर रनिंग स्टिच हम एक छोटा सा दूसरा टुकड़ा लेते हैं. ओके, अभी हम सपोज हमें ये दो एंड को स्टिच करना है. हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है पर हमें फटाफट से करना है. सो रनिंग स्टिच कैसे यूज होता है, अभी मैं इसका टैसल बना. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड. यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, नीचे से आप लोगे. एंड देन जितना आपका ये है लेंथ है आपके क्लॉथ का, उसके हिसाब से आप ये डिस्टेंस आप ले सकते हो. अगर आप बड़े स्टिचेस चाहते हो आप बड़ा बड़ा डिस्टेंस ले सकते हो इफ यू हैव लार्ज एरिया टू कवर. और आपका मीडियम है तो आप 0.5 सेंटीमीटर तक आपका एक स्टिच का लेंथ रख सकते हो. तो बस आपको ऐसे सुई डालते जाना है. एंड बी केयरफुल, ये अटकता है बहुत बार, इसलिए स्लोली करो एंड देन यू कैन स्ट्रेच. ऐसे करते जाना है जहां तक आपको ये. दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर फिक्सिंग. अगर आपका कुछ कपड़ा कहीं से फट गया है, थोड़ा सा सीलन जो है निकल गई है, उसके लिए ये फिक्स करने के लिए ऐसे स्टिचेस यूज करते हैं फटाफट में. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये फट से होने वाला है. इट जस्ट डज द वर्क ऑफ सीलिंग द एंड. तो ये बहुत पक्का स्टिच ऐसा कुछ नहीं है. इट्स फॉर ऑलवेज मोस्ट लाइक फॉर द लिटिल टेम्पररी इफेक्ट. अगर आप ऐसे ही रखोगे तो ये हमेशा के लिए रहेगा. इट्स नॉट दैट इज गोइंग टू कम आउट आफ्टर सम टाइम और समथिंग, पर इसका ऑब्जेक्टिव वो है. ओके, तो ये इसकी खासियत क्या है कि ये ऑल्टरनेट गैप्स रहते हैं इसमें, पीछे से भी और आगे से भी. सो इट विल लुक द सेम ऑन बोथ द साइड. इसीलिए ये क्विल्टिंग में हम यूज करने वाले हैं. जब हमारा मतलब लास्ट क्लास विल बी क्विल्टिंग, तो तब हम ये इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो अभी आपको अगर दोबारा से इसके बीच में भी करना है तो अब दूसरे साइड से लेके आप ऐसे ही सेम वे में स्टिचेस बना सकते हो.
यहाँ तक ले रही हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि आप ले सकते हो। तो ये लाइन जैसा बन जाएगा। तो यू कैन यूज दिस स्टिच फॉर मेकिंग स्टेम्स या फिर आउटलाइंस ऑफ योर डिजाइन्स। उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ऑल्सो सिंपल आपके ड्रेस पे कभी कभी एम्ब्रॉयडरी की जरूरत होती है, मतलब सिर्फ आउटलाइन जैसा। तो उसमें आप ये खाली आउटलाइन बना के छोड़ सकते हो। डोंट नीड टू डू एवरीथिंग डिटेल्ड ऑल द टाइम। सो दिस इज वन स्टेप। ओके, डाउन ओनली। इस तरह से दिखेगा यहाँ तक रनिंग स्टिच, और उसके बाद हमने दोनों डायरेक्शन में लिया है। पीछे से भी सेम रहेगा। नाउ इसको मैं सील कर देती हूँ। सील करने के लिए आप एक छोटा सा स्टिच ले ले और उसमें से सुई आपकी ऐसे लेके अटका के उसको सील कर दीजिए। आप चाहे तो दो तीन ऐसे बना सकते हो फॉर सिक्योरिंग इट। कभी भी थ्रेड को खुला नहीं छोड़ना है। दिस इज फॉर बिगिनर्स, जिनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है उनके लिए है। जो ऑलरेडी जानते हैं मोस्टली सबको ये आता है। बट कुछ लोग होते हैं कभी कभी मतलब मौका ही नहीं हुआ कि कुछ सिलाई काम करे। सो दिस इज रनिंग स्टिच। तो इसका फायदा क्या हुआ, हमारा ये एंड सिल गया। एंड अभी अगर आप ऐसे दूसरी तरफ से देखोगे कि आप ओपन कर सकते हो, है ना, तो ये पाइप जैसा बन जाता है। तो ये ज्यादातर कुछ अगर आप टैसल बना रहे हो कपड़े का, या फिर कुछ आप यहाँ से धागा डाल के कुछ सील करना चाहते हो बटवा वटवा, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। So that was our first stitch, running stitch. Now second type of stitch is इसको क्या बोलते हैं, just forgot the name. In Hindi, in Marathi we call it टिप। हमारी जो रेगुलर स्टिच होता है वो स्टिच हम दिखाएंगे। Then I'll take a small portion of cloth. ये this is not any fancy kind of stitch again. It's regular सिलाई जो होती है उसका है ऐसे। ये भी तो ये क्या कब करते हैं, जब आपको सपोज कोई एंड फिनिश करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब मुझे मेरा अभी फिक्स हो गया कि मैं यहाँ पे सीने वाली हूँ। तो यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। रनिंग स्टिच जैसे ही शुरुआत करनी है, नो नथिंग वेरी डिफरेंट। और अभी एक बार में एक स्टिच आएगा, और पीछे से बस सुई लेके यहाँ से लिया, और सुई बस इतनी लेनी है पीछे से, एक डॉट तरह से। ये गैप थोड़ा ज्यादा ही हो गया, एंड नेवर माइंड। और यहाँ से दूसरी स्टिच। तो ये पीछे से आपको रनिंग स्टिच की तरह पीछे धागा इसका नहीं दिखेगा। अभी ये लेयर ज्यादा है तो मुझे ज्यादा लेना पड़ रहा है लेंथ। पीछे से ऐसे डॉट्स दिखेंगे खाली, वहां पे नहीं आएगा ये। ऐसे करना है इसको। रनिंग स्टिच में हमने पीछे आगे पीछे ऐसे लिया था, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगा। तो you can see ये सीधा एक लाइन में आएगा, जिस जैसे हमारा स्टिचेस होते हैं वैसे। और ये पीछे से सिर्फ डॉट डॉट दिखेगा। रनिंग स्टिच में क्या था, दोनों तरफ सेम था, दिखता था।
ये अभी 3 लेयर है इसलिए थोड़ा सा गैप ज्यादा है, वरना आप ये बहुत नजदीक नजदीक भी रख सकते हो। थोड़ा सा बड़ा दिखाते हो। मतलब जितना सिर्फ आगे आने के लिए लगती है जगह, उतना ही पीछे लेके आपको वापस आगे आना है। Okay, like this. अभी ये मैंने डबल लेयर लिया है, तो ये आप यहाँ पे गांठ बांध दीजिए। ये हमारे समर हॉलीडेज में सीखी थी मैं, स्कूल टाइम में मेरी और फ्रेंड और मैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, यूज्ड टू मेक दिस इन समर हॉलीडेज। तो तब सब फ्रेंड्स हम ऐसे यही काम करते थे। सबके पास एक रिंग होती थी और 4-5 स्टिचेस सिखा दिए थे सबको मिलके, और वही करते रहते थे हम। Okay. Now next stitch that we are going to see is very simple and very attractive. वो है chain stitch. तो छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करते हैं। Whatever you like, you can use draw, कोई भी आप शेप का फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम चेन स्टिच जो देखेंगे वो ये स्टेम के लिए पहले देखेंगे। तो पीछे से स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड यू लाइक, मतलब ये करना है ये करना है, कोई भी आप एक चूज कर लो। नाउ सबसे पहले थोड़ा सा ये पीछे लेके जाना है और ऊपर आना है। ओके, ये रुक के, ये जो आपका थ्रेड है, यू हैव टू मेक अ राउंड ओवर द नीडल। तो ये आपका बन गया पहला चेन। विजिबल। तो ये फर्स्ट चेन हो गया। फिर दोबारा लेना है पीछे से शुरुआत करके, अगेन ट्राई टू कीप द सेम लेंथ। ऊपर ले ली सुई, अगेन मेक अ राउंड एंड कंटिन्यू। तो ऐसी है ये चेन बनती जाएगी। करते रहो। अगर आपको छोटा लेंथ चाहिए आप छोटी लेंथ ले सकते हो, बट जो भी आप एक शुरुआत करोगे तो ट्राई टू कीप द सेम। इफ यू मेक लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द स्टिच,
then it won't look very nice. आपका एक हाथ हमेशा पीछे रहना चाहिए, because this will help you to get the position right for the needle. You will control that way. अगर आप दोनों हाथ आगे लाओगे तो उतना इफेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि आपका हर बार पोजीशनिंग गलत हो सकता है. तो दिस इज चेन स्टिच दैट वी आर डूइंग अभी. एंड इसमें ये बहुत पॉपुलर है. जैसे आपका कोई ड्रेस है, प्लेन वाला ड्रेस है. ओ गॉड, ये तो मैं भूल गई. आपका अगर कोई प्लेन ड्रेस है जिसपे आपको थोड़ा सा कुछ चाहिए, एक फ्लावर, बहुत प्लेन नहीं चाहिए, तो उसमें आप ये चेन स्टिच बना सकते हो. इट्स वेरी सिंपल टू मेक ऑल्सो, एंड फटाफट हो जाता है. सो आप मतलब पूरा दिन एक फ्लावर बनाओगे ऐसा नहीं है. अभी मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैंने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं और उनको डबल लेके, 2 लेयर लेके उसको फिक्स कर दिया है. अगर आपको बहुत बारीक करना है, लेकिन नाजुक नाजुक फूल बनाने हैं, देन यू कैन टेक ओनली 2 स्ट्रैंड्स, और सिर्फ 3 स्ट्रैंड्स लेके सिर्फ 3 स्ट्रैंड से ही कर सकते हो. डोंट नीड टू मेक 6 आउट ऑफ 3. अभी मैंने क्या किया, 2 लिए और उसके 4 बनाए. अब ये नीचे ऐड कर लिया. एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू स्टिच हियर, आप सेम जो है पीछे से ये प्लेन दिखता है. देयर इज नो चेन एट द रेयर साइड. अभी आपको अगर दूसरा स्टिच शुरू करना है, अभी मैं आपको सैटिन स्टिच सिखाती हूँ. ये छोटा सा जो हमारा गोल है उसको हमें कवर करना है. अभी छोटा गोल है, तो एक बार राइट एक बार लेफ्ट ऐसे करते करते हमें ये कवर करना होता है. अब ये एरिया बहुत छोटा है ये दिखाने के लिए स्टिच, पर यू गेट द जिस्ट ऑफ. यहाँ पे आपका धागा फ्लैट रहेगा तो बेटर है. क्लोज करने हैं आपको, नजदीक नजदीक. आप ये 2 कलर में भी कर सकते हो, एक साइड में शेडिंग दिखाने के लिए, एक साइड पिंक, एक साइड दूसरा कलर का धागा, ऐसा ले सकते हो. जहाँ पे अभी अब थोड़ी थोड़ी गैप दिख रही है, वहां पे आप और एक बार स्टिच कर सकते हो. और ये ओवरलैप भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका. हमारा कॉन्सेप्ट ही वैसा है. अभी धागा खत्म होने को आया है ऑलमोस्ट, बट इट विल फिट फॉर दिस वन होपफुली.
ये हमारा छोटू सा सर्कल बन गया सैटिन स्टिच। इज इट विजिबल? मुझे तो पता नहीं। हाँ अभी और पीछे से देखो सेम ही दिखता है, ये लाइन 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 जैसे। आप चाहे तो एक साइड में ये सिक्योर कर दो, बट यहाँ पे क्योंकि बाहर से दिख रहा है इसीलिए बस एक गांठ बना के आप छोड़ देना। और अगर आपका ओपेक मटेरियल है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है जो मैं यूज कर रही हूँ, इट्स टेरिकॉट। पर अगर आप कॉटन या ओपेक थ्रेड ओपेक कपड़ा यूज कर रहे हैं तो देन दिखेगा नहीं पीछे का। तो देन यू कैन मेक एज मेनी नॉट्स एज यू वांट। अभी तक हमारे हो गए, पहला था रनिंग स्टिच, देन था रेगुलर स्टिच, अभी चेन स्टिच, ये बटन ये सैटिन स्टिच हो गया। अब इसी में हम ये पेटल बनाएंगे। I'll take another color. सेम ही है ये, थोड़ा सा मैं ये अभी मैं तीन स्टैंड्स लूंगी और एक ही लेयर रखूंगी, मतलब एक टाइम पे एक ही लेयर यूज होगा। तो जब भी आप एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, डोंट टेक टू लार्ज लेंथ्स। ओके, बहुत ज्यादा आप लेंथ लोगे तो देयर इज टेंडेंसी कि वहां पे अटक जाएगा बहुत सारा threads. They'll get tangled, all of them, and then you will waste a lot of thread. That's a different thing altogether, but it will be too messy for you to rectify also. तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। सो टेक स्मॉलर लेंस एंड मेक इट इफेक्ट। अभी ये तीन स्टैंड्स हैं। मेरी सुई कहाँ गई? अभी ये सबसे बड़ा टास्क होता है। Always tend to lose the needle. अभी इतना ये ले रही हूँ। और ये सेकंड जो साइड होता है ये आपको कम रखना है, अदरवाइज वो बार बार आपको खींचना पड़ता है। इतनी ही लेंथ रखो। तो सिर्फ एक साइड से हम नॉट बनाएंगे। जिनको नहीं आता मैं दिखा देती हूँ नॉट। आसान है। हाथ में लीजिए, लूप बनाइए ऐसे, और ये लेके बस रोल कीजिए तो ये अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है और ये अटक अटक जाता है। So for this now we'll make the central petal। यहाँ से शुरू कर रही हूँ। हाइट सबसे पहले हम डिमार्केट करेंगे। जितना आप क्लोज ला सकते हो उतनी क्लोज ले लो।
जो कारीगर होते हैं वो इतनी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी रिंग पे कभी काम नहीं करते। उनका हमारे जो कॉट रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, उतना बड़ा स्ट्रक्चर रहता है और उस पे वो तान के कपड़ा लगा लेते हैं एंड फटाफट फिर बनाते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे कभी कभी 2-3 लोग इकट्ठा काम करते हैं, तो उनका अलग ढांचा रहता है पूरा। वी कैन नेवर मैच देयर क्रिएटिविटी एंड स्पीड, बट थोड़ा थोड़ा आप खुद के लिए भी कर पाए तो काफी होता है। प्रोफेशनली अगर आप करना चाहो एम्ब्रॉयडरी तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी ये बिगिनर लेवल है, जो जिनको बिल्कुल भी कभी किया नहीं है, सो फॉर देम आई हैव एडेड दिस एम्ब्रॉयडरी। अदरवाइज ये इतना मतलब इट्स रिलेटेड टू टेलरिंग मोर ओवर, बट इट इज such a beautiful art. It requires a lot of patience though. There's never ending. There are so many stitches to learn. A few years back, it was too much in trend. If somebody knew embroidery, it was so fancy then. Nowadays, nobody is really interested in doing these things at home. सब रेडीमेड हमको मिल जाता है, पैचेस मिल जाते हैं, so hardly we do it by ourselves. But it's very contentful experience. खुद से बना हुआ कुछ पहनो, कुछ रुमाल बना बना लो। सी, ये अभी है क्या, एकदम सॉफ्ट रहता है ये सैटिन की तरह, इसलिए इसको सैटिन स्टिच बोल। थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही करना है आपको। चाहे तो आप और एक कलर से साइड साइड में बीच बीच में गैप्स, अभी इसमें गैप्स कम है, इफ यू ऑब्जर्व इसमें गैप्स कम है पहले से। हमने जो सर्कल किया था उससे यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े से गैप्स ज्यादा थे, तो फिर हमने उस पे और एक लेयर चढ़ाया। यहाँ पे हमने एक छोटा लेयर लिया है, छोटे मतलब 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं, इसलिए उसकी विड्थ भी ज्यादा है और नजदीक नजदीक होने पे ये कवर भी अच्छा कर ले। फेदर स्टिच एक होता है, दिस इज दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दिस, पर वो कश्मीरी करते हैं ना, वो स्टाइल है, इट्स सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट, बट इसका जो ढांचा है थोड़ा सा अलग है। इज एनीबडी डूइंग अलोंग विथ मी, या फिर आप सबको ऑलरेडी पता है ये? कुछ किसी को कुछ रिपीटेटिव लग रहा है तो बोल दीजिए, आई कैन ट्राई समथिंग एल्स। सी, अभी हमारी एक पूरी पेटल हो गई उतनी शॉर्ट लेंथ में, इसीलिए कहीं पे भी अटका नहीं, क्योंकि छोटा हमने लेंथ लिया एंड इट इज मच इजियर टू कंट्रोल दैट वे। अभी ये एक पूरा पेटल कितना अच्छा लगता है। और अभी ये आप पीछे से भी ऐसा ही दिखता है ये स्टिच, तो ये भी जरूरी है। कभी कभी क्या है, साड़ी वारी है या फिर दुपट्टा है, तो दोज आर द क्लॉथ टाइप्स दैट विल बी सीन फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इन दैट केस आपको ऐसे पैटर्न चूज करने हैं जहाँ पे आपको दोनों साइड से सिमिलर या फिर एटलीस्ट प्रेजेंटेबल दिखे, कंप्लीटली एकदम मेस दिखे पीछे से। ऐसे बहुत सारे स्टिचेस होते हैं जो दिखते हैं पीछे से, तो क्या करते हैं कुछ लोग पीछे से उस पे एक अस्तर लगा लेते हैं, लाइनिंग लगा देते हैं, ताकि वो एम्ब्रॉयडरी के जो धागे हैं वो दिखे भी नहीं, और आपका जो अंदर के बारीक काम जो है वो कभी खराब भी ना हो। जनरली मशीन वॉश इज नॉट recommended फॉर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आइटम्स, तो आप हाथ से धोंगे तो अच्छा रहेगा ये। I mean, this is not related to the class, but I mean, can keep that in mind.
इफ यू गेट मतलब कुछ कुछ स्टाइल्स जैसे लखनवी चिकनकारी जो है वो भी रेकमेंडेड होते हैं कि वो आप हाथ से ही क्लीन करें, पर कभी कभी मशीन में डल जाते हैं तो वो खराब नहीं होते, क्योंकि क्योंकि उनके बेस में जो है, बेस उनका स्ट्रॉन्ग मटेरियल का रहता है. दे टेंड टू मिक्स लिटिल टेरिकॉट एट टाइम्स विथ कॉटन, तो वो स्ट्रेंथ अच्छा देता है. अभी कौन सा रह गया है? अभी बिजी लिजी एक स्टिच है जो चेन स्टिच के जैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है. मतलब ये फूल ड्रॉ करा है मैंने. और फिर हर एक स्टिच अलग अलग आएगा. ओनली वन स्टिच फॉर वन पेटल. ये पहला हो गया. पीछे जाएंगे. They will be intact. Go behind for the second one. This is called, मैंने इसका नाम बताया क्या? ये है गेहूं टाका. गेहूं के जैसा एक दाना जो आता है, इसके जैसा है, इसीलिए इसको गेहूं टाका बोलते इन लोकल लैंग्वेज. अदरवाइज इसका अंग्रेजी नाम कुछ आई थिंक व्हीट व्हीट स्टिच तो नहीं है. आई शेयर इट ऑन ग्रुप, मैंने लिखा हुआ है. किसी को पता है तो बोल दीजिए. तो एक पेटल में हमारा एक हो जाता है, तो ये भी छोटे छोटे फूल पर अगर कहीं पे बॉर्डर जस्ट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है. पीछे से एकदम सिंपल दिखता है. ये ब्राइट कलर्स में स्पेशली कभी कभी क्या करते हैं जो एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं, तो वो ब्लैक कलर का पॉपलिन क्लॉथ लेते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा सा थिक रहता है. केसमेंट पॉपलिन ये दोनों आप ले सकते हो. एंड देन एक ही कलर के कपड़े, एक मतलब एक ही कपड़े में 1/2 मीटर भी काफी होता है वो. आप सारे स्टिचेस उस पे बना के रख सकते हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस.
There's so many stitches to be learned. अभी के आज के दिन में मैं सिर्फ 5 सिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये काफी है आपको एक अच्छा सा कुछ ड्रेस वेस बनाने के लिए। आप टी शर्ट्स पे भी कर सकते हो, छोटे से फ्लावर्स बहुत क्यूट लगते हैं। अभी ये बनाते हुए मैं सोच रही हूँ कि क्यों मैंने पहले कभी किसी ड्रेस पे खुद से नहीं बनाया। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। इतना टाइम भी नहीं लेता एक्चुअली, 1-2 दिन में कंप्लीट हो सकता है छोटा सा डिजाइन। सी अब ये बीच में निकल गया थ्रेड, तो एक स्टैंड हमारा ऑलरेडी है, तो ये आराम से हम सुई में डाल सकते हैं। कभी भी छोटा होल हो सुई का तो स्ट्रैंड्स आप कम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटे से होल में 3-4 स्ट्रैंड्स ऐड करेंगे तो बार बार वो अटकता जाएगा एंड यू विल लूज योर इंटरेस्ट, क्योंकि इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट। आप एक सर्कल ड्रॉ करके भी नजदीक नजदीक धागे बना, मतलब पेटल्स बना सकते हो। यू कैन ऐड मोर पेटल्स आल्सो इफ यू वांट। If anybody has any doubt, you can ask. कल हमारा फैब्रिक ज्वेलरी का होगा सेशन। उसके लिए आप कॉटन का कोई भी आपका टुकड़ा बचा है, कोई आपका दुपट्टा बचा है, छोटा सा पीस आपके पुराने ड्रेस का, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर नया आप लाना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो। अभी यहाँ सेंटर के पोर्शन में मैं आपको अलग स्टिच दिखाती हूँ। आई लव दैट स्टिच एक्चुअली। हम जैसे वर्म होता है ना, उसके जैसा दिखता है वो। तो मराठी में हम उसे अड़ी अड़ी टाका कहते हैं। जैसे कैटरपिलर छोटा सा रहता है मटर पे, उसके जैसा दिखता है ये। English names are slightly different, of course, depending on their harvest season. और एक्स्ट्रा थोड़ा सा एज छोड़ दीजिएगा, डोंट एकदम कट टू कट कट नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट रख दीजिए ये बीच का। So it will shine little bit। इसमें रोजेस बड़े बनते हैं, ये ऐड किया यहाँ से, फिर और एक बार ऐड कीजिए साइड में। एंड अभी इस पे बहुत सारे स्टिचेस को 2-3 बार आप ऐसे ऐसे कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब चाहे जितने ले सकते हैं, अभी मैंने 7 लिए हैं। और ये धीरे 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 करके एक जगह पे आप ला दीजिए।
ये तो ये अलग टोटली बन जाता है। और जहां से आपने शुरू किया वहां पे आप लेके थोड़े साइड में इसको नीचे ऐसे कर दीजिए। तो ये ऐसे झोल 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 ऐसे दिखता है। अभी ये जगह कम है इधर तो उतना दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। लेके 5 बनाए अभी राउंड्स। इस तरह से एक राउंड आता है वर्म के जैसा। साइड में थोड़ा सा और इसमें भी। अरे निकल गया। 5 rounds at one place। इस तरह से ये रोज के जैसा दिखता है। और पीछे से ऐसा एक डॉट दिखता है बस। तब क्या दोबारा। विजिबल थोड़ा सा। यस। ऐसे 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 आगे आपको करते जाना है। बहुत मतलब टाइम लगता है ये स्टिच के लिए। और ये थोड़ा मोटा थ्रेड लेना चाहिए। अभी टाइम था इसलिए wanted to try with the existing one। सी ऐसे एक बन गया। इसके बाद सेकंड वाला करना है वहीं पे लेके दोबारा ये नीचे जाएगा सब। एंड देन वापस नीचे।
ये नजदीक नजदीक करके आपको पूरा एरिया भर सकते हैं ऐसे। तो ये वर्म जैसा दिखता है। जब आप थोड़ा सा मोटा लेंगे ना थ्रेड तो दिख जाएगा। एक बार ये में तो ये सेंटर्स के लिए अच्छा है थ्रेड, वो धागा, ये स्टिच का टाइप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 स्टिचेस। कौन सा? चेन स्टिच, सैटिन स्टिच, ये गेहूं टाका, रेगुलर रनिंग स्टिच और रेगुलर स्टिच, से 5 सिखाए। ये वर्म स्टिच है तो ये इसका मैं प्रॉपर नाम बताती हूँ आपको, आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक फ्रेंच नॉट भी कहते हैं, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर, कुछ तो नॉट है। एनीवेज, आप ये ट्राई करना। आप फूल बनाओगे, कुछ बनाओगे तो जरूर शेयर करना पिक्चर। एंड दिस तो यू कैन ट्राई, दिस इज वेरी क्यूट स्टिच, ये फटाफट हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस?